ओके खुशी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हारे हो जी दादाजी, हारे हो जी दादाजी, तमारा विना क्याय गोठતું નથી। તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી। हारे हो जी प्यारा जी, हारे हो जी प्याराजी, सहारा विना बीज ઉગતું નથી। સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી। हारे हो जी दादाजी, हारे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી। તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી। જગત કુસંગે જદુક, જગત કુસંગે જ દુઃખ, કેવળ સતસંગે જ સુખ। કેવળ સત્સંગે જ સુખ। દાદાજીનું હસતું મુખ, દાદાજીનું હસતું મુખ, સમણે દર્શન થાતા સુખ। સમણે દર્શન થાતા સુખ। હીરા મોતી મારાજી, હીરા મોતી મહારાજી, સમૃદ્ધ સતિયા વિના દલડું ઠરતું નથી। સમૃદ્ધ સતિયા વિના દલડું ઠરતું નથી। હારે હો જી દાદાજી, હારે હો જી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી। તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી। દુનિયાભરમાં લુખ્ખું લાગે, દુનિયાભરમાં લુખ્ખું લાગે, સત્સંગ વિના સૂનું લાગે। સત્સંગ વિના સૂનું લાગે, બેરહો દિવસ રાત જાગે, બિરહો દિવસ રાત જાગે, જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે। જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે। રોકો અતિક્રમણાજી, રોકો અતિક્રમણાજી, આતમ રમણા વિના કાંઈ રૂચતું નથી। આત્મ રમણા વિના કાંય રૂચતું નથી। હારે હો જી દાદાજી, હારે હો જી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી। તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી। જય जय સચ્ચિદાનંદ। सच्चिदानंद। विधि रिपीट प्लीज विधि। हाँ, जय सच्चिदानंद। हारे हो जी दादाजी, हारे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી। તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી। हारे हो जी प्यारा जी,
हारे हो जी प्यारा जी સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. હારે હોજી દાદાજી હારે હોજી દાદાજી તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. જગત કુસંગે જ દુઃખ જગત કુસંગે જ દુઃખ કેવળ સત્સંગે જ સુખ. કેવળ સત્સંગે જ સુખ. દાદાજીનું હસતું મુખ દાદાજીનું હસતું મુખ શમણે દર્શન થાતા સુખ. સમણે દર્શન થાતા સુખ. હીરા મોતી મારાજી હીરા મોતી મારાજી સમૃદ્ધ સતિયા વિના દલડું ઠરતું નથી. સમૃદ્ધ સતિયા વિના દલડું તરતું નથી. હારે હોજી દાદાજી હારે હોજી દાદાજી તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. દુનિયા ભરમાં લુખ્ખું લાગે દુનિયા ભરમાં લુખું લાગે સત્સંગ વિના સૂનું લાગે. સત્સંગ વિના સૂનું લાગે. બિરહો દિવસ રાત જાગે બિરહો દિવસ રાત જાગે. જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે. રોકો અતિક્રમણાજી રોકો અતિક્રમણાજી આત્મ રમણા વિના કાય રૂચતું નથી. આતમ રમણા વિના કાય રૂચતું નથી. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद जय खुशी दीदी हमारा विना बीज उगती नहीं तो उसका मीनिंग कल बताना हमको. ओके दीपक दादा 3 मिनट बुलाइए. નમો વિતરાગાય નમો વિતરાગાય નમો અરિહંતાણમ નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો વિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોએ સવ સાહુણમ નમો લોએ સવાસાહણમ એસો પંચન મુક્તારો એસો પંચમુખારો તવ પાવપણાસણો સર્વપાવપણાસનો મંગલાણમ ચ સૌવેસે મંગલમ ચ સૌવેસે પરમામ હવૈ મંગલમ. પરમં હરિ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. जय જય सच्चिदानंद. સચ્ચિદાનંદ. विनाय हाँ जय सच्चिदानंद. हे राधा भगवान मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं.
ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसम से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मालिक बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। कैसा रहा मम्मी पापा के साथ? हाँ, अच्छा रहा। ओके दीदी दीदी तसी मोटी बहन अन्य दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हे हे दादा दादा भगवान, मुझे मुझे पढ़ाई पढ़ाई में में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, आते हैं, जो जो भी भी ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शंस आते आते हैं, उन सभी उन सभी सभी को को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय निश्चय करती हूँ। करती हूँ। आप आप ऐसी आप ऐसी ऐसी कृपा 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 करें करें कि जिससे जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और और मेरी मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। हो। ऐसी ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। दे। जय श्रेया दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं हम आपके हैं आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे। करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे। हे श्रिया, जय सच्चिदानंद। जिम्नास्टिक में ऐसे मरती मरती जाती है, तो फिर ये प्रेम बोलने के वक्त तो हमें पूरा पावर से करने का है, वो छत उड़ जाना चाहिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्या होमवर्क क्या था दीदी? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज का होमवर्क ये था कि हमने कहाँ से सेवा ली और कहाँ पे सेवा दी। किसमें? हेल्थ में। ओके। और कोई लिखते तो नहीं? किसने लिखा नोट्स में, रिपोर्ट में किसने लिखा? 1 2 3। श्रेया क्या लिखा? बाप भूल गई? ओके देव अव्यय नहीं लिखते हैं। ओके विजय दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को खाना मतलब बनाने में हेल्प करी थी। मैंने आज दाल राइस बनाए थे और आज घर में थोड़ा एक्स्ट्रा काम निकाला था, तो उसमें मैंने स्लाइडर क्लीन करने में हेल्प की थी। ओके परमार खुशी सुना क्या बनाया दीदी ने? और वेकेशन में आपको अहमदाबाद के नडियाद जाना पड़ेगा। खुशी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने आज मम्मी को खाना परोसा था और मम्मी को काम में हेल्प भी कराई थी, बर्तन सही से रख दिए थे। और खाने में कितना टेस्ट आया था? मुझे अभी मैंने दाल खाई है तो मुझे 6 आया है। ओके। और मैं तो सब भूल गया, उतना ही मम्मी याद आती, दूसरा कुछ आता ही नहीं है। कल कल सत्संग में क्या आया था विधि दीदी? हाँ, हमें मतलब सभी को हेल्प करनी चाहिए। नहीं वो तो हम जितनी हेल्प करेंगे उतनी हमें ज्यादा खुशी मिलेगी। उसकी नहीं था, और कुछ नहीं था। हेल्थ में क्या किसको हेल्प हम
सेवा लेते हैं बिफोर ईटिंग इवन. ओके जोशनी जोनसी आपने क्या घर पे हेल्प किया मम्मी को? आज मैंने मम्मी को हेल्प की थी, बर्तन चौकड़ी में रख दिए थे। ओके साफ नहीं किया क्यों? शिवा दीदी सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी को खाना बनाने में हेल्प किया था और बालकनी में से सब कपड़े उठा के घर में रख दिए थे। विनय हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी की बर्तन धोने में हेल्प की और स्टेप्स क्लीन करने में हेल्प की और एक्स्ट्रा में मैंने खाना परोसा सभी के लिए और आज मैं तो वापिस बोलो प्लीज, बहुत नॉइज आता था, जोर से बोलो. हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी की मदद में बर्तन धोने में की और स्टेप्स क्लीन करने में भी की और एक्स्ट्रा में मैंने खाना परोसा और आज मुझे 3 गेस्ट आए और आज मैंने खाना बनाते वक्त मैंने मम्मी की मदद नहीं की। अंदर बताया क्या क्या? जब खाना बना रही थी मम्मी तब मैंने हेल्प नहीं की, तब मैं पढ़ाई कर रही थी अपने एग्जाम के लिए। ओके कृष्णा दीदी जय सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी की मदद की थी, 2 बार की थी, 3 मंथ में 10 टाइम्स की थी और खुशी दीदी को, पापा को, मोनिका दीदी की सेवा की। खुशी दीदी जय सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी की हेल्प की थी झाड़ू फेरने में, घर साफ करने में। जब मम्मी बाहर गई थी तो मैंने घर को झाड़ू फेर दिया था और ऊपर मम्मी ने कहा प्लांट्स को पानी देना, तो मैंने जाकर पानी दिए। आपको खाना बनाना आता है? नहीं, कब सीखेगा? फ्री टाइम। हमारे एज आएगा तब सीखने का. नहीं, वेकेशन में। खुशी परमार वो भी नहीं सीखती है. हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी को हेल्प की थी झाड़ू लगाने में और बर्तन साफ करने में और आज मम्मी को सर दुख रहा था तो मैंने उनका सर भी दबाया था और मैंने मम्मी से हेल्प ली भी थी। अनन्या दीदी जय सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी को पोछा लगाने में, प्लेटफॉर्म साफ करने में और खाना परोसने में हेल्प की थी और आज मैंने मम्मी से हेल्प ली भी थी। अनन्या भाई अव्य भाई जय सच्चिदानंद, मैंने मम्मी की हेल्प की थी। मम्मी ने बोला तो ऊपर कपड़े सुखा के आया तो मैंने कपड़े सुखाए थे और मम्मी ने कुछ, मेरे मामा ने कुछ मंगवाया था तो मैंने उनकी हेल्प की थी उठाने में। ओके पांचवी कलम बोलो. એ ભગવાન મને કોઈ પણ દે દે જીવાત્માન સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા તંત્રી ભાષા ન બોલવાય કે બોલવા પ્રત્યેના અનુમદે એવી આપણને આપો. हे भगवान कुछ सुनाई देगा. अच्छा बोला दीपक दादा करेक्ट. कोई कठोर भाषा आगे बोलो. कठोर भाषा तंत्री भाषा न बोलाय न बोलो कठोर भाषा बोले तो मने कठोर भाषा बोले तो मैंने मृदु रूप भाषा बोल सकता हूँ. देखो कल पक्का ओ टीवी आज नहीं देखने का, कल पक्का सब वर्ड बाय वर्ड करने का. देव भाई हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी की हेल्प की थी। आज मैंने बर्तन अंदर से बाहर रख दिए थे और मम्मी की हेल्प ली भी थी सुबह उठने में, मतलब उठाया था, ऐसे मैं खुद से नहीं उठा था। तो आपको 9 कलम पक्की आती है? हाँ पांचवी बोलो. हे દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેદારી જીવાત્મા સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા તંત્રીલી ભાષા ન બોલાય ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેદારી જીવાત્મા સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા कोई कठोर भाषा तंदीली भाषा તંત્રીલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. जो आप दिन में 2 दफा नहीं बोलते. वेरी बैड मोटी बहन. जय सच्चिदानंद, मैंने मम्मी को आज खाना बनाने में हेल्प की थी और हेता को भी हेल्प की थी और मम्मी से हेल्प ली थी.
क्या बात है नवनीत दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मेरे घर के काम में हेल्प की थी, बर्तन जचाने में और खाना परोसने में और पानी लाने में, और मैंने मम्मी मासी और दादी से सेवा ली थी। अमित भाई, हाँ अमित जय भाई, सच्चिदानंद। बहुत आवाज आता है, आप जरा ध्यान रखना किसको बोलो, बोलने का नहीं। ओके बोलो। हाँ हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरी मम्मी को वो बर्तन चौकड़ी में रखे थे, मैंने रखे थे। और आज मम्मी को पानी खाने बैठी थी तब पानी लेना था तो मैंने दिया था। क्या बात है, वेरी गुड। ओके और बच्चों। आज मैंने चाय सीख ली। ओके बच्चों लोग सब फेल हो गया आज, टोटल फेलियर। वाई? कल क्या 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 बोला था देखो, किसी ने त्रिमंत्र का सहारा नहीं लिया, किसी ने जिसने खाना आपको उधर सब बनाया वो नहीं आया, वो 3 देव देवी को नहीं आया, रसासन देव देवी को आपने अब सब भूल गए। आहार करे छे वो भी सब भूल गए सब। हाँ, और बाद में कितना टेस्ट आया, टेस्ट का देव को भी नमन करना मांगता है। ओके तो ये रिपीट करना पड़ेगा। यू हैव एवरी मील, ये करेगा तो बहुत फायदा होगा। ओके ओके दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। आप लोगों को इधर डांट पड़ती तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? बुरा लगता है। बुरा लगना ही चाहिए। तो बुरा लगेगा तो अंदर से ऐसा होना चाहिए कि अरे रजनी दादा को वापस हमने परेशान किया, उनको क्यों बोलना पड़ा। लेकिन हम सीख रहे हैं, तो सीखते वक्त गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि देखो ओवरऑल आप सब लोग स्कूल में या कॉलेज में आप बड़ा अच्छा करते हैं, आपका रिजल्ट बेकार नहीं है, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। कुछ लोग कुछ उसमें कमजोरी है वो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल आपका स्कूल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो फिर ये सत्संग में क्या प्रॉब्लम हो जाता है? उसका मतलब ये है कि स्कूल का तो हमें करना ही है। फिर से मैं बताता हूँ कि ये सत्संग का कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? कंपल्सरी है। कौन बोलता है कंपलसरी? नदी बेटे वो कंपलसरी नहीं है, स्कूल का कंपलसरी है। तो कंपलसरी में तो आप परफॉर्मेंस अच्छा करते ही है, लेकिन जहाँ हमें ऑप्शनल है यानी करना चाहे तो कर सकते हैं, और अगर इसमें यानी जहाँ उसको क्या बोलते हैं मर्जी है, वहां पर मर्जी से करो ना करो ऐसा है। लेकिन मर्जी हमारी फर्ज बन जाए तो हमारा काम हो जाता है, क्योंकि मर्जी की बात हमें कोई दबाव नहीं डालेंगे करने के लिए। तो यहाँ बात करते हैं, लेकिन आपको कोई ऐसा उसका कोई एविडेंट यानी सीधे सीधा रिजल्ट आता नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट आता है। तो आप लोग स्कूल में तो बड़े अच्छे हो, तो ये जो मर्जी वाला भाग है ना, उसको फर्ज समझकर करेंगे। देखो आप यहाँ पर आते हैं ना, तो अपना बाल बना के आते हैं कि ऐसे ही करके आते हैं? बोलो। बाल बना के आते हैं ना? हाँ। बाहर जाना हुआ तो बाल बनाते हैं, ढंग के कपड़े पहनते हैं, और बाहर जाने के कपड़े पहन के सो जाते हैं रात को। नहीं। जो भी नाइट का सूट होता है वो हम पहनते हैं। कहने की बात क्या है कि जो कोई कार्य होता है ना, उसकी एक
नीति वाली या उसकी एक क्या बोले, उसकी एक ढंग की विधि होती है, यानी प्रोसीजर, मेथड होती है। स्कूल में जाते हैं तो किताबें लेके जाते हैं ना, हाँ वो किताबें छोड़ जाते तो क्या होता है, अरे मैं पेन लेना ही भूल गया, तो रास्ते में से भी खरीद लेते हैं, ये रास्ते में याद आ गया। स्कूल में जाने के बाद भी कोई फ्रेंड से, आजू बाजू किसी से भी ले लेते हैं। मूल बात क्या है, ये दादा का सिद्धांत समझ लेते हैं। विधि पूर्वक, विधि के साथ जो कोई कार्य किया जाता है वह परम सिद्धि को प्राप्त करवाता है। इसका मतलब क्या है, अगर हम ढंग से कोई भी काम करें तो एक ढंग का काम यानी जो व्यवहार से बनता है, और दूसरा है वह आंतरिक है। आंतरिक का मतलब क्या है कि जहाँ, क्योंकि ये सब जो कार्य होता है वो देव देवी की कृपा से होता है। कैसे कैसे, क्या हवा अपने आप हिलती है, घूमती है? उनके देव है। पानी है, पानी के देव है, बारिश के देव है, समझे? ये भूमि जहां पर हम बैठे हैं, भूमि के देव है। यानी हम मानते हैं कि हम कुछ भी करेंगे तो चलेगा, वो चलेगा नहीं चलेगा। ये जो प्राणी वगैरह है ना, वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करते, क्योंकि वो नेचुरल है। वो प्रकृति के साथ तालमेल कर जीते हैं। लेकिन हम है ना, हमारे दिमाग से चलते हैं, और हमारा दिमाग है ना वो बहुत टेढ़ा है कि सीधा है। हाँ, टेढ़ा है, इसीलिए उसको सीधा करने की जरूरत है। समझ नहीं है, अज्ञानता है, इसीलिए वो टेढ़ा मेढ़ा काम करता है। लेकिन मूल बात क्या है, धीमे धीमे हम सभी, हमारी जो जो व्यवहार की क्रियाएं होती जाएगी, उन सभी में हमारी ये दादा भगवान ने बताई गई विधि, क्योंकि वो जो विधि जरूरी है काम करने के लिए, वो तो हमें करना ही पड़ता है। स्कूल में गए, बाल बनाने के बगैर एक बार स्कूल में चले जाना, फिर देखो लोग क्या बोलते हैं, नहीं आपको पता चलेगा। लेकिन विधि करके नहीं गए, त्रिमंत्र बोल के नहीं गए, तो कोई बोलेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं। ये तो यही सत्संग में पूछते हैं, त्रिमंत्र किया था, ये किया था, अब समझ गए? तो वो विधि जरूरी है, लेकिन ये विधि हमारी मर्जी की है। यानी ये मर्जी का मतलब क्या है कि जहां पर इतने लोग हमारी ये क्रिया करने में मदद करते हैं, सहायता देते हैं, तो हम उनका आदर करते हैं, उनको याद करते हैं। ये उनको एक तरफ से हम जब नमस्कार करते हैं तो उनका आदर करते हैं। और ऐसे अगर हमने किया, हम त्रिमंत्र बोलने के पीछे क्या है, मंत्र के पीछे जो अधिष्ठाता देव देवियां हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। और इस तरह से ये विधि पूर्वक जो हमारा कार्य होता है ना, वो परम सिद्धि, यानी उस क्रिया के पीछे जो हमारा आशय है, गोल क्या है, वो सहज में पूरा होता है। ये समझ में आया? हाँ। क्रिया से तो हो गए। अभी देखो, आपने पढ़ाई किया, आपको अच्छा मार्क्स आया ना, तो आपका ईगो बढ़ जाएगा, इजीली बढ़ जाएगा, मेरे जैसा कोई नहीं करके। लेकिन ये त्रिमंत्र, ये सत्संग का जब आधार होगा तो वो रिजल्ट तो अच्छा आया, लेकिन अहंकार नहीं आएगा, तो ये अच्छा नहीं हुआ। हाँ, अच्छा हुआ। ये बात है। और हम सब इस तरह से, जैसे ये सेवा की बात करते हैं कि जहां जहां से हमने सेवा ली है तो उनका हम आदर करेंगे तो उनके आशीर्वाद हमें भरपूर मिलेगा। अभी आप सोचो, डैडी मम्मी को किसी भी तरह से आप हेल्प करते हैं, जो हो सकता है, जैसा हो सकता है, वैसे आपको कोई बोलेगा नहीं। अभी
करने के लिए कभी शायद बोलेंगे नहीं, लेकिन आप समझ से करेंगे तो आपके अंदर अभी से वह गुण जो लघुता का गुण है, ह्यूमिलिटी का गुण है, वो अंदर से विकास होते जाएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसा बोला जाता है कि आदमी है ना, विनय से, आदर से पहचाना जाता है उनका विनय कैसा है। दादा भगवान परम विनय में रहते थे। उसका मतलब क्या है? वो किसी से भी जुदाई नहीं थी, किसी से भी वो अलग, मैं अलग हूँ, मैं बड़ा हूँ करके ऐसा महसूस नहीं करते थे। और हम भी जब उनके पास जाते हैं तो हमें अपने ही ऐसा लगता है, तो ये क्या है? ये जादू है? नहीं, दादा भगवान इस तरह से रहे अंदर से, और हमें वैसे ही अंदर से रहना है दादा भगवान के जैसे, तब हम दादा भगवान जैसे मैन ऑफ पर्सनैलिटी बन पाएंगे, एग्जैक्टली एज दादा भगवान। हमारा अच्छा है। और देव, आईने में जाके सराहना अपने बाल को, ये बात है। हमें ये भी पता नहीं है कि कोई मुझे देख रहा है, इतना तो मालूम होना चाहिए ना कि आपका वीडियो ऑन है तो, है देव? इतने भी हमें खो जाना नहीं चाहिए। Anyway, ये समझ में आया? विधि पूर्वक किया गया काम परम सिद्धि को प्राप्त करवाता है। तो हमें कोई भी क्रिया में कोई विधि रह गई, पूछो अपने आप। घर से निकले कोई विधि रह गई? सबसे बड़ी विधि क्या है? जब घर से बाहर निकलते हैं तो दादा भगवान ने बताया, घर से निकले बाहर तो एटलीस्ट 5 बार बोलना है, लेकिन एक बार भी अगर आप बोल लेंगे, मेरे मन वचन काया से किसी को भी दुख ना हो। क्योंकि बाहर जाते हैं यानी तूफान में जाते हैं, और ये तय करके जाते हैं कि किसी को भी दुख ना हो, तो हमने हमारी सेफ साइड कर ली, हमने हमारा रक्षण ले लिया, और ये दादा भगवान का रक्षण है। फिर दादा भगवान ने बताया कि अगर किसी से कुछ हो जाता है, हमने ये जो तय किया है ना, किसी को भी दुख ना हो, तो हमें तुरंत अंदर बैल बजेगी कि ये गलती हो गई, माफी मांग लो तुरंत। ये बात है, समझ गए? यही सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, तो क्या हो गया था? ये फेल क्यों हो गया सब? दीदी हाँ। दीदी, छोटी बहन, परमार, खुशकी को ध्यान में रहा रहा ना? हाँ, तो ये सब जरा ध्यान रखने का है ना, क्योंकि ये सब इतना 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 काम करेगा, आपको अभी कुछ मालूम नहीं। जब आप बड़े हो गए तो ये इतना बहुत, कि आपको तो अभी कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि क्या फायदा होगा। ओके, जय सच्चिदानंद। ओके, श्रेया दीदी, आर यू रेडी? Yes. ओके, एक मिनट वेट दीपक दादा, श्रेया दीदी